Hello students, welcome to our YouTube channel that is Change the Classes, and in today's IT series we'll do the topic of fundamentals of computers and networks, and this is our lecture number 6 and ये part second है इस topic da. And before moving further, I want all of you to please subscribe our YouTube channel and that is Change the Classes. And we'll move on to our first topic, that is network topology. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਹਦੀਆਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, we have star topology, we have mesh topology, ठीक है, and 2 other more topologies. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਾਊ ਆਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਅਰੇਂਜਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ। ਸੋ this thing is all told by a network topology. So let's move on to the first type, that is bus topology. Bus topology ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 1 ਲਾ ਲਓ, ਆ 2 ਲਗਾ ਲਓ, let's say it is a component 3 and let's say it's component 4. ਇਹ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆਪ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮॉल ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰਰੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so bus topology is that topology in which all the network components are connected with the same line or with the same bus, and it is used when network installation is simple, small or temporary. आप इसके विच बस नेटवर्क टोपोलॉजी दिखाई है। इसके विच ਜਿਹੜੀ बस नेटवर्क टोपोलॉजी है उसके विच देखियो आ वाली ਜਿਹੜੀ सिंगल बस है, ठीक है, इसके नाल एक डिवाइस कनेक्टेड है, से फाइल सर्वर, सेकंड प्रिंटर है, 1 2 3 4 अपने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है इसके नाल, ठीक है, एक अपना हब कनेक्टेड है, वी कैन से दैट अ राउटर और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो एक बस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ डिवाइस कनेक्टेड हैं, इस टोपोलॉजी में ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इट विल बी कॉल्ड एज बस टोपोलॉजी। okay, so we'll move on to our next slide. Next type, that is star topology. स्टार टोपोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਫਿਗਰ। दैट इज एक सेंटर वाला हब होएगा, सेंटर वाला नोड होएगा। ठीक है, एक नोड है, ये वाला सेंटर वाला नोड है, यहाँ सारे कनेक्टेड होंगे कंपोनेंट्स की कनेक्टेड होंगे नेटवर्क के कंपोनेंट्स जिनकी मैं नेटवर्क की टोपोलॉजी कर रहे हैं, right? So here it is a central node, ठीक है, इधर ना सारे नेटवर्क के कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, PC1 PC1 PC2 PC3 PC4 एंड कोई प्रिंटर और भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक सेंट्रल नोड कहने हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेंट्रल नोड। ठीक है, तो ਜਿਹੜਾ सेंटर वाला ਹੁੰਦਾ ਹੈ नोड ਹੁੰਦਾ है ना, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿਗਨਲਸ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ 2 ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ in the form of signals ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ in the form of we say that packets ਹੁੰਦੀ ਹੈ। okay, we have seen that
सो फॉर द सिंपलीफिकेशन पर्पसेस तुसीं ये देखो कि जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना इस सेंटर हब तो, ठीक है, आ कोई मेन स्टेशन है अपना, आ जिहड़े हैं हाँ दूजे सब स्टेशन है, इन्हां जिन्नी भी इन्फॉर्मेशन पास होएगी, ठीक है, सेंटर मेन स्टेशन पास करूँगा किन्हां नूं सब स्टेशंस। ओके, so this is called as a star topology. Now we will move on to our next type. Move on to our next type, that is ring or circular topology. Ring का मतलब अपने जिहड़े मीनिंग तो ही क्लियर है, जिहड़े रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी होएगी जिन्ने भी नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं ਉਹ एक रिंग दे फॉर्म दे विच, ठीक है, ਜਾਂ एक सर्कुलर फॉर्म दे विच कनेक्टेड होएंगे एंड इन दिस जितने भी कंपोनेंट्स हैं से हियर इट इज 1 2 3 4 5 6, there are 6 pieces that are connected in a network and which are forming a network and this type of network topology it is known as the ring topology. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। तो रिंग टोपोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਟੋਕਨ ਹੈ, ਠੀਕ है, ਉਹ इस पहला इस 4 वाले पीसी को जाएगा मैसेज, फिर 5 वाले को जाएगा, फिर 6 फिर 1 2 3 इस तरीके ਨਾਲ स्टेशन से ਜਾਂ कंप्यूटर्स के ऊपर मैसेज ट्रांसमिट होएगा इन द फॉर्म ऑफ डेटा, ठीक है। मैसेज का मतलब कि हो गया डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एक इत्थे यूज़ होएगा जिथे आपां नूं हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क होणगे, उत्थे आपां रिंग टोपोलॉजी नूं यूज़ करते हैं। सो रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क्स। वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट type, that is a mesh topology. Now what do you mean by a mesh? mesh की ਹੁੰਦਾ है, mesh मतलब बहुत ही आप कह देते हैं ना इंटरकनैक्शन बहुत ही चीज़ों का। तुसी किसी स्पाइडर नूं, स्पाइडर मतलब किसी मकड़ी का जाल बनया देखिए, वो मैश बनाता है, एक जाल बनाता है अपने रहन वास्ते जां अपने कोई भी इंसेक्ट नूं कैच करने लई। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट ओनली, विल रेफर द मैश टोपोलॉजी टू अ स्पाइडर। ओके, तो मैश टोपोलॉजी विच की है, अपने कोले 1 2 3 4 5 6 अपने को 6 पीसी हैं, ठीक है, ठीक है, जो 6 बंदे हैं वो किसी भी तरीके नाल, किसी भी रूट नाल या किसी भी राही एक दूजे नाल कम्युनिकेट कर सकते हैं। 2 3 नाल इस तरीके नाल गल कर सकता है, ठीक है, 2 4 नाल ऐ भी गल कर सकता है, 2 5 नाल इस राही भी गल कर सकता है। सो देयर इज एन कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन मैश टोपोलॉजी। तो 2 इस ना 4 ना इस तरीके ना कनेक्टेड है, 4 5 ना फिर इस तरीके ना कनेक्टेड है, 5 6 ना फिर इस तरीके ना कनेक्टेड है। सो देयर इज अ मैश फॉर्मिंग है, बहुत इंटरकनेक्शन है, आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, बहुत ये तो बहुत सिंपलीफाइड तो मैश दिता हुआ है। बट व्हेन वी मूव ऑन टू दिस नेटवर्क जिहदे विच 6 तो भी ज़्यादा पीसेस होंगे, सोचो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मैश टोपोलॉजी यूज़ होएगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होंगे, ठीक है। इस जो फीचर है ये है कि हर एक नोड, इतने नोड की है, हर एक कंप्यूटर को आप नोड कहांगे, हर एक पीसी इट इज कॉल्ड एज ए नोड। हर एक नोड का हर एक दूजे नोड के नाल एक पॉइंट टू पॉइंट कनैक्शन होएगा। कोई यह जिहा नोड नहीं हैगा कि जिवें आ नोड है 1, ए नोड 2 है, ठीक है, ए नोड 3 है, मतलब ये नहीं है कि 1 का 3 के नाल कनैक्शन है, 3 का 2 के नाल कनैक्शन है, बट 1 का 2 के नाल कनैक्शन नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन मैश टोपोलॉजी। ओके, तो हर एक नोड का हर एक दूसरे नोड के नाल पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड कनैक्शन रहेगा ही रहेगा। सो दिस इज अ फीचर ऑफ आर मैश टोपोलॉजी। ओके, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर mesh topology. We'll move on to our second
we'll move on to our next topology, that is tree topology. थोड़े नाम मतलब इस नाम से पता लग रहा होगा ना what is tree topology. Tree topology is that topology in which the network components are arranged in the form of tree. Like tree ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ tree में थोड़े grandfather हैं, ठीक है, उन्होंने दो बेटे हैं, योर फादर, ठीक है, योर अंकल, ठीक है, और चाचा जी या ताया जी कुछ भी, ठीक है। तो इन्हों के भी अगे तुसी बेटियों, सन है, डॉटर है, इन्हों के भी अगे बहुत सारे अगे हिरारकीज अगे आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ ट्री, ठीक है। इस तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ट्री है, ट्री नेटवर्क है, ट्री टोपोलॉजी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡਿਵਾਈਸ 1 2 3 4 5 6 7 ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਸ ਨੋਡਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੋਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ 1 ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ 2 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, 3 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ 2 ਹੈ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, 5 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ 5 ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। डिवाइस 5 indirectly डिवाइस 1 ਨਾਲ भी connected है। Similarly, device 6, device 7 are also indirectly connected to the device 1. Okay. Now ਇਹਦਾ फीचर ਕੀ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आप बहुत सारे devices attach कर सकते हैं, ठीक है। जिमें device 4 है ना, आप आगे 3 device और लगाते, suppose A B C, ठीक है। इन्हें आगे और device आ जाएंगे 1 2 3, अब मतलब बहुत सारे डिवाइसेस इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ, और दिस इज द एडवांटेज ऑफ आवर ट्री टोपोलॉजी। ओके, आई होप these 5 टोपोलॉजी would have been understood by all of you. तो बहुत ही सिंपलीफाइड वे में समझाइया ने, and we'll move on to our next topic, that is what are the benefits of our network. ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲॉजीज ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ read about all the things. ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ the benefit that we have gained from the network is that ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ फाइल शेयर कर सकते हैं। सपोज कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, ओके। जो कोई फाइल है, सपोज कोई ऑडियो फाइल है, तो मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। कोई सिद्धू मूसेवाला का नवा गाना आया है, तो मेक यू गाइज हैव वेरी इंटरेस्ट ऑन इन दिस लेक्चर। मैं इंक्लूड कर रही हूँ कि सिद्धू मूसेवाला का नवा गाना आया है, तो थोड़ा दोस्त कहे मैनू भी गाना चाहिए यार, हम तुम इन्होंने किवें शेयर करोगे, थ्रू फाइल शेयरिंग और थ्रू नेटवर्क। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ network, that is file sharing. Second one is hardware sharing. अपनी कंपनीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं A B C, पर अपना कंप्यूटर ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, तो A ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, B ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, C ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ A B C तीनों ही एक हार्डवेयर प्रिंटर एक ही हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। सो ये थ्रू नेटवर्क अपन बेनिफिट की मिले हार्डवेयर शेयरिंग का। सो थ्रू नेटवर्क वी आर गेटिंग दी बेनिफिट ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग। नाउ द थर्ड benefit of network is application sharing, and that would be like अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ I don't know much about games, but suppose take a game like GTA, Vice City and all that, ठीक है। जे किसी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ है, ये नेटवर्क है अपना, ठीक है। एक ये गेम है, गेम इज एन एप्लीकेशन, यू नो दैट, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को नेटवर्क के राਹੀਂ ट्रांसफर कर सकते हैं, जे इथों कर सकते हैं, दिस काइंड ऑफ शेयरिंग, ओके। सो इट इज आल्सो अ बेनिफिट ऑफ आवर नेटवर्क।
नाउ द लास्ट बेनिफिट इज यूजर कम्युनिकेशन। आप चैटिंग करते हैं राइट, यूजिंग आवर मोबाइल फोन्स, यूजिंग आवर टैबलेट्स, यूजिंग आवर laptops and PCs. So this is a very common example and common benefit and advantage of using the network। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਥਰੂ WhatsApp ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। if your friend is sitting in Canada say and you are sitting in India, ठीक है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ इंडिया तो अपने फ्रेंड कैनेडा वाले फ्रेंड नाल गल कर सकते हो किस राही नेटवर्क के राही, तो एक ही होगा नेटवर्क का बेनिफिट। ओके, आई होप ये बहुत सिंपलीफाइड वे समझाया मैं, तो समझ गए होंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अपने कोले इहदे विच अराउंड वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आई गेस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यस। सो इहदे विच आपां देखांगे, आई एम सॉरी, इसके विच देखेंगे व्हाट इज लैन, व्हाट इज वैन, व्हाट इज मैन। मैन अपना वो नहीं जोड़ा मेल नहीं कहना, मैन इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क ऑल्सो, एंड व्हाट इज पैन। ठीक है, ये 4 तरीके नेटवर्क आप देखेंगे इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो आई थिंक थानू थोड़ा जिहा ये टॉपिक्स नवे लग रहे होंगे है ना, एज यू गाइस आर सीइंग दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम राइट। तुसीं की करना है, यू हैव टू गो तुम 2 या 3 बार इन्होंने रिवाइज करना है, ठीक है। ठीक है, तो सानू थोड़ा जिहा दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है कि हाँ यही चीज़ इस तरीके नाल हुंदी है। ठीक है, एक बारी च किसी नूं कुछ नहीं याद होंदा, यू नो दैट when you will go twice or thrice, okay, or when you will revise these topics around 2 to 4 times, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। okay, we'll do the first network, that is, so मैं classification ਕੀਤੀ है, we have 4 types of networks, that is LAN, WAN ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। so मैं ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ present ਕੀਤਾ है मैन पैन। ओके, now what is LAN? LAN ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੋਕਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, तो clear it from the definition that we use locally। ठीक है, ठीक है, लोकली मतलब वो नेटवर्क ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ठीक है, नेड़े नेड़े होंगे, नियरेस्ट होंगे। ठीक है, so the LAN nets the network devices over a relatively short distance। ठीक है, जिवें अपने होम दे विच, ऑफिस दे विच, बिल्डिंग, स्कूल एक्सेट्रा इन्हां विच की हुंदा, अपने LAN यूज हुंदे हैं। इत्थे आपां देखांगे कि एक LAN लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इहदे विच 1 2 3 4 5 नेटवर्क यूजर हैं एंड दे आर यूजिंग अ प्रिंटर। तो ये है, ये लगा लो ये स्कूल है, दिस इज अ स्कूल, ये टीचर्स हैं। ठीक है, यही कर रहे हैं, एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं जिन्होंने आप कह रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आह जिहड़ा टीचर है फर्स्ट फ्लोर पर बैठा है, ये टीचर बैठा है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर पर किसी और क्लास बैठा है एंड सैकेंड फ्लोर पर बैठा है, थर्ड फ्लोर पर बैठा है। तो इस मतलब डिस्टेंस बहुत ही घट है इन्हां दे विच। ठीक है, इन्हां डिवाइसिस दे विच, ते ये कनैक्टेड होए पे ने एक दूजे दे नाल, जिहदे कित्थे काम कर रहे हैं, स्कूल दे विच काम कर रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क। Now we will move on to WAN। WAN is very simple, इन्हू कहने हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब एक्सपेंडेड। वाइड किवें हो जाऊगा, एक ही होगा जिथे बहुत सारे लैन दे कनैक्शन होंगे, मतलब लोकल एरिया के जिन्ने कनैक्शन होंगे, जिवें आ वैन है, वैन है। ठीक है, वैन दे विच एक कलैक्शन किहदा होएगा, द कलैक्शन ऑफ लैंस। ठीक है, आह जिहड़ा पूरा सिस्टम है ना, इन्हूं आपां वैन कहने हैं। इस वैन दे विच 3 लैन है, 1 LAN, 2 LAN
सपोज एक स्कूल है, उसकी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, कोई इस पार्ट दे विच है, कोई इस पार्ट दे विच है, कोई इस पार्ट दे विच है। सो व्हेन दिस 3 ब्रांचेस उन्होंने अड अड लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ठीक है, तो ये किस राही मोनीटर हो रहे हैं या किस अंदर आ रहे हैं, तो कौन इन्होंने देख रहा है या सुपरवाइज कर रहा है, एक वैन कर रहा है, ठीक है, जो उन्होंने CEO या चेयरमैन कोई भी जो उन्होंने स्कूल का जो होएगा उन्होंने देख रहा होगा, तो किस दे थ्रू कर रहा होगा, एक वैन राही कर रहा होगा। सो जो LAN जो 3 लोकल नेटवर्क हैं एक वैन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो वैन इज जस्ट सिंपल, इट इज अ कलैक्शन ऑफ लैंड्स, जिमें अपने हो गए ATM, ओके, जो ATM होंगे अपने ATM अपने कितने जगह लगे होंगे, ठीक है, कितने बैंक्स से, सपोज टेक एग्जांपल ऑफ SBI। तो एक टाउन दे विच बहुत सारी प्लेसिस होंगे हैं, 1 2 3 4 5, इत्थे भी ATM, इत्थे भी ATM, इत्थे भी ATM, इत्थे भी ATM। तो इहदा भी एक लैन है, ये भी एक लैन है, दिस वन इज ऑल्सो अ लैन, दिस वन इज ऑल्सो अ लैन, दिस वन इज ऑल्सो अ लैन। So these 5 LANs form a WAN. Okay, so this is an example of a wide area network. So next one is, what is a MAN? MAN is a metropolitan area network. Metropolitan ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, will use the word that is metropolitan cities। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ना, ये metropolitan cities हैं, for example मुंबई। ओके, मतलब जितना विच बहुत ही ज़्यादा डिजाइनिंग प्रॉपरली हुई होवे, मैट्रोज फॉर सिंपलीफिकेशन देखो, मैट्रोज होन, मॉल्स होन, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होवे, ठीक है, वी कॉल दैट सिटीज एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज। So try to relate that metropolitan cities with this metropolitan area network. Okay, metropolitan area network ये होएगा, एक किसी टाउन ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਹੈ, दिस इज अ मैन, मतलब ये एक लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਾउन है, सपोज ਆਪਾਂ देखिए कि आह पूरा टाउन है, ठीक है, ਇੱਥੇ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज ये बिजली बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है अपना, ठीक है, ओके, एंड हियर इज ए मॉल, से दैट हियर इज हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल है, एंड रेलवेज हैं, ठीक है, एंड इतने CM हाउस है, या लगा लो तुसी इतने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिथे कोई अपना काम हुंदा है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है। तो जे इन्हां दे अड अड की होएंगे, लैन होएंगे, ठीक है, इहदा भी लैन, इहदा भी लैन, इहदा भी, ये सारे लैन की करनगे, एक मैन फॉर्म करनगे, किस दे विच, एक सिटी दे विच। हुण तुसीं कन्फ्यूज हो रहे होवोगे कि यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ वैन। मैन भी एक तरीके का लैन का कनैक्शन है, एंड वैन भी एक तरीके का जिहड़ा है वो भी लैन का कनैक्शन है। द डिफरेंस इज दिस, जिहड़ा मैन है वो एक स्पैसीफिकली एक टाउन या एक सिटी लिए डिज़ाइन किया जाता है। जो वैन है वो जरूरी नहीं कि एक टाउन जो एक सिटी वास्ते ही डिज़ाइन किया होए, वो एक सिटी स्टेट वास्ते भी हो सकता है, वो एक कंट्री वास्ते भी हो सकता है। इस करके वैन का साइज अपने मैन तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अब मैन की एग्जांपल लेने, दैट इज केबल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ मैन है ओके, अपने केबल्स हर जगह लगियां होंदियां, TV केबल्स हर किसी के घर ते होंदियां, घर तो छड्डो अपने हर ऑफिस दे विच होंदियां,
एंड वी आल्सो हैव इन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो जिन्हें भी केबल नेटवर्क है, ठीक है, एक ही फॉर्म करेगा, एक मैन फॉर्म करेगा इसके एक सिटी या एक टाउन दे विच। So cable TV network is an example of metropolitan area network. I hope this would have been understood by you. We'll move on to our next network. तो इन्हू समझाने तो पहला मैं तुहानू यह दसदा कि जे तुहानू कोई भी दिक्कत, कोई भी इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी सिली डाउट भी है, ठीक है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी जो प्रॉब्लम आ रही है, डू कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, एंड वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कोई भी डाउट आ रहा है असं तुहानू ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ we have the potential and we have that time ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। and if you want to know any other courses or something like that about our classes, to contact us। and ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ you have that doubt or something like conceptual doubt ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ MCQ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੇ MCQs ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, do contact our team। and if you are hesitating to do so, do write your views in the comment section, okay। we'll figure it out and we'll answer your queries as soon as possible। so moving on to our topic, that is personal area network। so ये personal मतलब अपने खुद दे यूज ली, that is individual दे यूज ली, ठीक है। जिमें मेरे personal area network दिखाया गया है, ठीक है, जिमें मैं कोई personal area network, सपोज मेरा फोन है, ठीक है, दिस इज माई फोन, ठीक है। तो मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क की होएगा, मैं ब्लूटूथ नाल भी कनेक्ट कर लिया अपने ब्लूटूथ स्पीकर दे नाल भी, ठीक है। मैं उसनों अपने एक वायरलेस अपने स्कैनर नाल प्रिंटर नाल भी कनेक्ट किया होया है, ओके। मैं अपने हेडसेट नाल भी कनेक्ट किया होया है। तो दिस इज़ अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जिहड़ा कि स्पैसीफिकली मेरे वास्ते है, या सिर्फ मेरे यूज़ वास्ते है, या सिर्फ एक पर्सन के यूज़ वास्ते है, उसनों कहने हैं आप पर्सनल एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल की ब्लूटूथ, आप एग्जाम्पल ब्लूटूथ दी थे कवर कर ली है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हुण आप दो तरीके के मॉडल्स देखने हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग मॉडल्स कितने तरीके के होंगे हैं, ये दो तरीके के मॉडल्स हैं, that is peer to peer, and the second one that is important from the examination point of view, that is client server, okay। दो तरीके के नेटवर्किंग मॉडल्स देखेंगे। the first one is the peer to peer and the second one is client server। we'll start with the peer to peer network and peer to peer network ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ पीडीएफ होगी, वर्ड फाइल होगी, पीपीटी होगी, ऑडियो होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन दैट इज इन दी डिजिटल फॉर्म, ओके। कोई भी इंफॉर्मेशन दैट इज इन दी डिजिटल फॉर्मेट ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਨੈਟਵਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਪਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਿਖਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਂਟ टेक दिस एग्जाम्पल, अगर तुम थोड़ा सिंपलीफाई विच समझाना है, टेक एग्जाम्पल ऑफ टू कंप्यूटर्स, कपल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, एक दूसरे नाल कनेक्टेड है, ठीक है, किस राही कनेक्टेड है, किसी पेन ड्राइव नाल, यूएसबी दी फुल फॉर्म ये पूछी जा सकती है, दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है।
कुछ कपल ऑफ कंप्यूटर यूनिवर्सल मतलब पेन ड्राइव ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ ਨੈਟਵਰਕ। ਓਕੇ, so we'll move on to the next and the last topic of today's lecture, that is the client server network. This one is very important and I want all of you to pay a good amount of attention on this topic, that is client and server network। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਸਰਵਰ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। so it is a network architecture which separates client from the server, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ one computer will work as a client and other will work as a server। okay, client ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, क्लाइंट की है पहला कोई रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर ਨੂੰ, ठीक है, सर्वर उस रिक्वेस्ट ਨੂੰ प्रोसेस करेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग तो बाद सर्वर उस रिक्वेस्ट ਦਾ रिप्लाई भेजेगा, ठीक है। तो ਇਹ क्लाइंट ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ क्लाइंट ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਅ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट is a passive device whereas server is a client is an active device whereas server is a passive device। तो क्लाइंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੇਗਾ, ਸਰਵਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂਗਾ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਰਿਪਲਾਈ ਟੂ ਦੀ ਕਲਾइंट ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਲਾइंट ਸਰਵਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਰਕਸ। so in this lecture 6 we have covered these topics and अगले लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ OSI मॉडल करना है ਜਿਹੜਾ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ भी MCQs हैं इस चैप्टर ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ही previous year ਦੇ MCQs will finish that off and the next lecture would be very important for all of you to attend। and if you guys have enjoyed this video and have liked this video, then please like करना and share it among your friends and do subscribe our YouTube channel and thank you and have a good day।